my India, for heaven's sake. If I name my son Taimur, the Hindu fundos are going to scream. If my wife wears a sleeveless dress, the Muslim fundos are going to scream and shout. What have you done to us, Mr. Politician? For heaven's sake, this is extremism of the ridiculous kind. So just stop this. Stop dividing India along caste and stop dividing India along religious lines, because at the end of 70 years, this is what you get if you do. ये बात की कौन क्या पहने और कब पहने और कैसे पहने, अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित है, ये मर्दों के ऊपर लागू नहीं होता ये नियम। तो जो आपने कहा उसमें मैं ये एडिशन करूंगी कि महिलाएं क्या पहने, कब आएं, कब जाएं, कब काम करें, कब काम ना करें, कब घूमने जाएं, कब ना जाएं, ये सारी चीजें इस देश की पितृसत्ता तय कर रही है। और यही वजह है कि कोई भी महिला, अनफॉर्चुनेटली यहाँ आज हमने देखा मोहम्मद शमी की वाइफ को और उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मगर सवाल ये उठता है कि ये कौन तय करेगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और हाईली कंडेमेबल है, मगर इस बात को लेकर ज्यादा जो ऑपोजिशन होना चाहिए वो मर्दों से होना चाहिए। महिलाएं तो हर बार यही बात कहेंगी कि महिलाओं को आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने, क्या बोलें, कब आए, कब जाएं, मगर ये बात पुरुष कब समझेंगे इस देश के, और पुरुष कब कहना शुरू करेंगे कि महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। This is totally unacceptable. This is moral policing, which is not sanctioned by the law, and I don't think it is fair to bring everything in every matter to bring in religion is not fair. And this kind of a patriarchal mindset where a dress code is always imposed in the women is not acceptable in today's day and age. The woman has a free choice. She is independent. She has her own freedom to decide what she can wear and what not to wear. And in any case, all Indian citizens have a right to privacy. All Indian citizens have their right to choice. All Indian citizens have their own freedom whereby they can decide, to have their own lifestyle. And this kind of moral policing is just not acceptable. देखिए, बहुत ही विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। आखिर उनको क्या अधिकार है कि वो किसी भी महिला पे टिप्पणी करे कि वो क्या पहने, कैसे जिए, क्या खाए, कितने बच्चे पैदा करे। ये ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई, वो सोचते हैं कि वो हर महिला को जीने का तरीका सिखा सकते हैं। इस तरह के लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए और इस तरह की टिप्पणियां जो सार्वजनिक रूप से करते हैं, कोई एक कानून होना चाहिए कि उनको किसी तरह की कुछ सजा हो सके। Very unfortunate that these religious bigots keep attacking women. They have nothing better to do but to notice the appearances of other women. They interfere. Every woman, no matter which religion she's from, has every right to post any pictures whatsoever. And that's a relatively modest picture of a lady wearing a gown. Who are they to comment on whether she's wearing a sleeveless gown or whether she should have worn it or not? I think it's very, very unfortunate. And we all stand with this lady and with Mohammed Shami, who's standing alongside his wife and saying that nobody has a right to interfere with what his wife, how his wife chooses to dress up as. While many have defended Mohammed Shami after he was trolled on social media, some Muslim clerics have now questioned Shami for putting up this picture of his wife wearing a sleeveless dress. अगर आप इस्लामिक पहलू से देखेंगे तो किसी भी मुसलमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि औरतों के ऊपर जो है वो बॉडी का कवरेज बहुत जरूरी है। और उनको तो एक मुसलमान होने के बाद जब उनको इतनी तरक्की मिली
तो उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त अल्लाह को नजर में रखते हुए कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी वाइफ जो है वो इस तरह से खुलेआम और ऐसे ड्रेसेस में ना आए और ना फोटो खिंचवाए। एक चीज तो ये है। अब विवाद की जहां तक बात है, मैं नहीं समझती हूँ कि इस पे विवाद का कोई पहलू है, लेकिन हाँ कंडेम करने का पहलू जरूर है कि भाई इस तरह से जो है उनको ख्याल रखना चाहिए था कि उनकी बीवी को जो है इस्लामिक नुक्ते नजर आप अगर मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत गलत है। आपका लिबास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कार में अगर आप देखेंगे, मजहब को हटाकर अगर हम अपने भारतीय संस्कार की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संस्कार में लिबास हमेशा से ढका हुआ होता था। औरतें बाकायदा पल्लू से पूरा ढकना, साड़ी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरे शरीर को ढकता है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर इस तरह की कोई बात उनकी आई है, उनका अपना जाती मामला है, मगर अगर किसी तरह के इस्लामिक दृष्टि से उसको अगर हम देखते हैं और तो मुझे लगता है कि लिबास बेहतर वही है कि जो आपके शरीर को ढके, जो मतलब दूसरे के सर के लिए नुमाइश न बने। इसका तो ख्याल हमेशा ही रखना चाहिए, क्योंकि मर्यादा भी कोई चीज होती है।